Hello everyone, welcome back to our channel. This is Madhuri Taneja, and in today's lecture we will discuss chapter number 9 of history, that is the making of regional cultures. This is the lecture number 4 of this chapter. In the previous few lectures we discussed how the cultures of different regions flourished during the medieval period of Indian history. Today we will study some more concepts from the same chapter. So, first of all, we have growth of regional language. I already told you that language is also included in culture. So, today we will study how the language led to the different culture of a region. For this, we have been given the example of Bengal. So, our topic is case study Bengal growth of regional language. Now, you all will be surprised to know that during the earlier times, the language of Bengal was not Bengali. अगर आपसे कोई पूछे बंगाल की लैंग्वेज क्या है तो यू विल से बंगाली. बट अर्लियर टाइम्स में ऐसा नहीं था. अगेन इंटरमिंगलिंग हुआ, कल्चर का मिक्सिंग हुई, कुछ लोग बाहर से आए और धीरे धीरे एक नई लैंग्वेज डेवलप्ड हुई जो फेमस होती गई. दैट लैंग्वेज इज नोन एज बंगाली. लेट्स सी हाउ. इट्स जनरली एज्यूम दैट बंगाली इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ बंगाल. ऐसा माना जाता है. एंड डिराइव फ्रॉम सांस्कृतिक लैंग्वेजेस. However, mid first millennium BCE, texts suggest that the people of Bengal did not speak Bengali. In the earlier times, they did not used to speak Bengali. Since the 3rd century BCE, trade ties developed between the Magad and Bengal. ट्रेड टाइज मीन्स कि आपस में मगध और बंगाल के बीच में ट्रेड स्टार्ट हुआ. अब ट्रेड होगा तो लोग आपस में डील करेंगे, बात भी करेंगे, एक एरिया से दूसरे एरिया में भी आएंगे, तो वहाँ पर कल्चर का मिक्सिंग होगी. इंटरमिंगलिंग ऑफ द कल्चर विल बी देयर. सो इन द 4th century, the Gupta rulers and the Brahmins, they settled in one area. It led to the strong cultural and linguistic influence from mid-Ganga valley in the region. अब क्या हुआ, जब ट्रेड टाइज हुई मगध और बंगाल की, तो अब आप सबको पता है मगध जो है वो गंगा रिवर के पास है. तो जब मगध और बंगाल में ट्रेड टाइज हुआ तो लोगों ने इकट्ठा डील करना स्टार्ट किया, आपस में उनकी ट्रेड से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, तो लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस हुआ. लिंग्विस्टिक मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज. मिड गंगा वैली का बंगाल एरिया पर जो मिड गंगा वैली की लैंग्वेज थी उसका इन्फ्लुएंस बंगाल एरिया पर भी हुआ, जिससे एक नई लैंग्वेज आई. Xuanzang, the Chinese traveler in the 7th century, observed that Sanskrit was used all over the Bengal. 7th century में आते आते बंगाल की जो लैंग्वेज थी वो बंगाली हो गई. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द 3rd century तो ऐसा नहीं था, बिकॉज उससे पहले तो इंटरमिंगलिंग हुआ ही नहीं था. इन द 8th century अब पालास ने बंगाल को कन्क्वायर किया. While between the 14th to 16th century, sultans independent of Delhi conquered Bengal. In 1586, when Akbar took over the Bengal Suba developed. Bengali developed as a regional language, while Persian became the language of administration. ये हमने पहले भी पढ़ा था. जो भी रूलर जिस भी एरिया में रूल करेगा वो जिस भी लैंग्वेज को प्रमोट करेगा, सपोर्ट करेगा, दैट लैंग्वेज, दैट फेस्टिवल, दैट कल्चर विल बी पॉपुलर. Similarly, when Palas ruled Bengal, similarly Akbar ruled Bengal, what he did, अकबर ने क्या किया, जो वहाँ की लैंग्वेज थी वो बंगाली रखी और ऑफिशियल पर्पस के लिए पर्शियन लैंग्वेज का यूज़ किया. तो दोनों ही लैंग्वेज वहाँ पर फेमस हो गई. अब बंगाली लैंग्वेज ऑफिशियल पर्पसेस के लिए नहीं थी, अदरवाइज द लैंग्वेज वाज यूज्ड बंगाली. तो बंगाली लैंग्वेज जब यूज़ होगी तो ऑब्वियस है जो स्टोरीज वगैरह लिखी जाएंगी वो भी बंगाली में होंगी. So Bengali literature was there during those times, if we talk about the 7th century onwards. Now the Bengal literature got divided into two categories. First one, whose origin related to Sanskrit, and second, which is not related to Sanskrit. The one which is related to Sanskrit includes ट्रांसलेशंस ऑफ संस्कृत एपिक्स. जो भी पहले संस्कृत में एपिक्स लिखे गए थे उनको ही कन्वर्ट किया गया बंगाली में, विच इज़ नोन एज मंगल काव्यास, और यू कैन से भक्ति लिटरेचर. वाई भक्ति लिटरेचर? बिकॉज दिस वॉज रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ गॉड्स. फॉर एग्जाम्पल चैतन्य देवा. These were composed between 15th to mid 18th centuries. The other Bengali literature was which is independent of Sanskrit. It includes Nath literature, songs of
मायनामती, गोपी चंद्र, फोक टेल्स, बैलेट्स एट्सेट्रा. नाउ यू कैन सी यहाँ पर भक्ति की बात नहीं है. अगर मंगल काव्यस देखो तो दैट इज रिलेटेड टू भक्ति लिटरेचर. लेकिन यहाँ क्या था, डिफरेंट सॉन्ग्स, फोक टेल्स एंड बैलेड्स आर देयर. नाउ व्हाट इज बैलेड? Ballad is just a story which is written in the form of short paragraphs. जब poem की form में story को लिखा जाता है that is known as ballads and these were recited orally. इसलिए लोगों को आज की डेट में वो या तो नहीं पता या बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नहीं पता बिकॉज इनका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था. सो दिस वॉज हाउ द बंगाली लैंग्वेज gained popularity, or you can say the growth of the Bengali language in the Bengal after 7th century. Next we have peers. The cult of peers became popular due to several factors. पीर आपने सुने होंगे. अब ये जो पीर थे दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू रिलीजन. इनकी पॉपुलैरिटी कैसे हुई? फर्स्ट रीजन, लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम वेस्टर्न बंगाल टू साउथ ईस्टर्न बंगाल. पहले तो ये लोग जो थे लार्ज स्केल माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल और एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और माइग्रेट लोग क्यों करते हैं? ईदर इन सर्च ऑफ हाउसेज, सेटलमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि जॉब्स के लिए. तो पीस बहुत सारे वेस्ट बंगाल से साउथ ईस्ट बंगाल में आए इन द 16th सेंचुरी इन सर्च ऑफ कल्टिवेबल लैंड. एक लैंड की सर्च में जहाँ पर वो कल्टिवेशन कर सकते थे. द पीजेंट्स इंटरमिंगल. अब जब अलग अलग पीजेंट्स आएंगे तो उनका एक अलग कल्चर होगा. अगेन इंटरमिंगलिंग होगी, मिक्सिंग ऑफ द कल्चर्स विल बी देयर. दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड with the local communities of the fisher folk and shifting cultivators, often tribals. अब जब पीजेंट्स वगैरह आते थे, जो पीस वगैरह आए, जिस भी लोकल एरिया में जाते थे उस एरिया में ऑलरेडी भी पर्सन्स थे, कुछ ट्राइबल पीपल्स भी थे, अलग अलग लोगों का कल्टिवेशन का वे था. तो हर कल्चर में हर चीज़ की इंटरमिंगलिंग हुई. दिस डेवलपमेंट कोइंसाइडेड with the establishment of Mughal control over Bengal. Official and functionaries who received land often set up mosques which brought people together. अब जब ये डेवलपमेंट हो रही थी, जब वो पर्सन्स आ रहे थे, साथ साथ मुगल्स का बंगाल पर कंट्रोल बढ़ता जा रहा था, दोनों काम हो रहे थे. और लोगों ने क्या किया था, मॉस्क वगैरह बनवाए थे. अब जब मॉस्क बनेंगे तो ऑब्वियस है वहाँ पर मुस्लिम रिलीजन के पीपल जो हैं वो कलेक्ट होंगे, गैदर होंगे आपस में. लोग जब गैदर होंगे अगेन इंटरमिंगलिंग होगी. These were the times of general insecurity among the new settlers who looked toward the leaders for security. अब लोग बाहर से आकर अपनी सेटलमेंट्स बना रहे थे बट वो इनसिक्योर थे बिकॉज कोई भी उनको वहाँ से बाहर निकाल सकता था. सो दे वर लुकिंग फॉर द लीडर्स. तो जो ये पीस वगैरह थे, इन लोगों ने क्या करा, ये जो पीस थे ये उनके लीडर्स बने और इन लीडर्स ने खुद को क्या बोला, टीचर्स का रोल दिया. कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी थी तो उनको लीडर्स की रिक्वायरमेंट थी. तो जो ब्रेव पर्सन्स थे या जो थोड़े से कमांडिंग पर्सन्स थे वो लीडर्स बन गए. उन्होंने खुद को टीचर का रोल दिया एंड इन टीचर्स को ही बाद में क्या बोला गया, पीर्स बोला गया. और पीर जैसे पीर बाबा वगैरह बोलते हैं ना आजकल, मतलब इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट. तो जो टीचर्स ये वाले थे, जो लीडर्स थे, दे बिगेन टू रेफर्ड एज पीर्स. एंड पीपल कंस्ट्रक्टेड श्राइन्स इन देयर ऑनर. उनके रिस्पेक्ट में श्राइन्स वगैरह बना दिए गए. नेक्स्ट वी हैव टेम्पल्स. टेम्पल बिल्डिंग and other religious structures acquired new impetus in the late 15th century. अब temples build होने start हुए. These were built by the rulers or individuals. अब rulers अगर temples बनवाएंगे तो क्यों बनवाएंगे? First to show their power. ऐसा माना जाता था कि जो जितने ज़्यादा फोर्ट्स टेम्पल्स बनवाएगा उसके पास उतनी ज़्यादा वेल्थ है. तो अपने पावर को शोकेस करने के लिए. पीटी मीन्स ये दिखाने के लिए कि येस वी वर्शिप ऑल्सो, अपनी वर्शिप की फीलिंग्स दिखाने के लिए, रिलीजियस सेंटिमेंट्स शो करने के लिए और लोगों के सपोर्ट को विन करने के लिए कि देखो जिस डीटी में, जिस गॉड में आप बिलीव करते हो उस गॉड के हमने टेम्पल्स बनवाए हैं. सो टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द crowd, the rulers used to make the temples. With the arrival of the British and the economic opportunities they offered, new social group emerged. अब ब्रिटिश भी इंडिया में आ गए बिकॉज जैसे जैसे मिडिवल पीरियड खत्म होगा तो किसका आएगा, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. तो उसके अंदर कौन आएंगे, आपके ब्रिटिशर्स. अब ब्रिटिशर्स जब आएंगे तो न्यू सोशल ग्रुप्स इमर्ज लाइक द कोलू जो ऑयल से रिलेटेड वर्क करते हैं, ऑयल प्रेसर्स, कंसारी
जो मेटल का वर्क करते हैं, जैसे पंसारी वगैरह होता है, ऐसे ही कंसारी कौन होते हैं? जो मेटल वर्कर्स होते हैं। जो ये न्यू ग्रुप्स के पर्सन्स थे, इन्होंने भी अपने टेम्पल्स वगैरह बनाने स्टार्ट करे, और जो टेम्पल्स बने वो कैसे फेमस हो गए? बंगाली स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। वी आर स्टडिंग अबाउट द बंगाल। तो जो भी वहाँ पे टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ, दिस लेड टू द construction of Bengali style. The exterior walls of these temples were decorated with terracotta work and ornamental tiles. Next we have fish as food in Bengal. See, first of all we have learnt about the language, that is Bengali language. Then we studied how the peers got popularity in the Bengal. Then we studied about the temples and the constructions of the buildings which is done by the rulers to show the power. And last we have the food which is there in the Bengal, and that is fish. और सबसे बड़ा रीज़न तो फिश का ये था कि जो आपका बंगाल था दैट इज़ नियर द कोस्टल एरियाज़। अब अगर कोस्टल एरियाज़ में बंगाल है, कोस्टल एरिया के पास है, तो ऑब्वियस है वहाँ पे फ़िश की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि कोस्टल एरिया है। दिस इज़ वेरी मच कॉमन। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, यहाँ पर फर्टाइल लैंड है तो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स ज़्यादा हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम बंगाल की बात करें, दैट इज़ रिलेटेड टू दैट इज़ नियर द कोस्टल एरिया। अगर कोस्टल एरिया के पास है तो ऑब्वियसली फ़िश की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो दैट विल बी द मेन फूड। सो फूड हैबिट्स आर लार्जली बाय द प्रोडक्ट्स अवेलेबल लोकली। हर जगह की फूड हैबिट्स कैसी होती हैं? जैसे वहाँ पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर क्या था? द प्लेसेस अलोंग द कोस्टल एरियाज यूजुअली हैव फिश एज अ पार्ट ऑफ देयर स्टेपल डाइट। उनकी जो मेन डाइट थी दैट वाज फिश, बिकॉज कोस्टल एरिया के पास वो लोकेट थी। देयरफॉर फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। और लोगों का जो ऑक्यूपेशन था वो भी क्या था? फिशिंग। जब लोगों की डाइट फिश है, अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करो तो मेजर ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर, बिकॉज लोग खाते भी वही क्रॉप्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ग्रेन्स। लेकिन अगर हम बात करें कोस्टल एरियाज़ की, तो क्योंकि वहाँ पर लोग फ़िश वगैरह खाते हैं तो ऑक्यूपेशन भी वही होगा। कोई ना कोई पर्सन तो फिशिंग भी करेगा, तभी तो फ़िश खाएंगे। सो हमें एविडेंस भी मिले हैं। We find the evidence of this on the walls of temples and Buddhist monasteries. Traditionally, Brahmins were prohibited from eating non-vegetarian food. However, this rule was relaxed in Bengal, where the Brahmins were allowed to eat certain varieties of fish. Now you all know जो Brahmins है वो non-veg नहीं खाते, तो बंगाल में भी ऐसा ही था। लेकिन बंगाल क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है, तो ब्राह्मण्स के पास रिलैक्सेशन थी कि वो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिशेस खा सकते हैं। So they were allowed to eat certain variety of fishes according to the Brihadaranyaka Puran, a 13th century Sanskrit text. So today we have discussed about Bengal, the language of Bengal, the food of Bengal, the popularity of peas in Bengal, and the construction of temples in Bengal. This was how the regional culture, how the culture of Bengal flourished. I hope the topic is clear to you all. Thank you.